ਅਸੀਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SIR ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਚूंकि ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ SIR ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SIR ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? SIR ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ डिस्कस करेंगे। देखो, SIR मैपिंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पंजाब में 2,14,00,000 के करीब, इससे ज़्यादा मतदाता हैं, वोटर हैं। पंजाब में 2,14,00,000 से ज़्यादा वोटर हैं। अब इसमें से 20,66,000 मैंने 20.66 लाख मैंने 20,66,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟਰਲ ਆਫਿਸ CEO ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5,74,000 ਲੋਕ ਡੈਡ ਪਾਏ ਗਏ, 1,19,000 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 4,12,000 ਐਬਸੈਂਟ, 9,44,000 ਸ਼ਿਫਟਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। मैं हिंदी दे विच रिपीट करता हाँ, इन कामों में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। 9,4,13 लाख और 44,000, 12,000, 56,000, 13,56,000 वोट सीधे काट दिए गए हैं, सीधे काट दिए गए हैं। और मैं ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगा, और मैं किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाने जा रहा हूं, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन, ये आप बताएंगे कि ये सही हुआ है कि गलत हुआ है, क्योंकि मैं सारा वही डाटा दे रहा हूं जो पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने, जो मैडम अनिंदिता मित्रा जी हैं, जिन्होंने 4 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बहुत ही सीनियर IAS अफसर हैं। उन्होंने जो बातें कही थी, क्या वो वाकई उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारा चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं। दोबारा, पंजाब में 2,14,00,000 वोटर हैं, 20,66,000 लोगों का वोट कट गया है। अब आप आए एबसेंट वोटर 4,12,000, शिफ्टेड वोटर 9,44,000। कहा गया है कि ERO 234, मतलब 117 हल्के ते हर हल्के दे विच 2-2 ERO, सुपरवाइजर 2501। लेकिन ਅਸੀਂ मैं MLA हाँ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, BLOs ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, लेकिन ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, एक भी व्यक्ति। ERO ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ERO ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ
काम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुपरवाइजर। मैं आज 4 बारी कोशिश की थी कि इलेक्शन कानून गो जो नॉर्थ हल्का वेखदे ने वो मेरा फोन ही अटेंड कर लें ता जो मैनू थोड़ा सा पता लग जाए कि सच्चाई की है, लेकिन वो फोन बहुत कट अटेंड कर देने। जेकर एक MLA का फोन कट अटेंड कर देने तो आम लोगों का की हाल हो रहा होगा, तुसी देख सकते हो। ये है जी, देखो 20 लाख वोट, 20 लाख तो ज्यादा पंजाब के वोट कट गए जी। हम आते हैं अब अमृतसर। अमृतसर में 11 हल्के हैं जी, 11 असेंबली हल्के हैं जिले के अंदर। आप देखेंगे कि यहां पर 2,42,000 वोट कट गया है जी। 2,42,000 वोट कट गया है। एवरेज कितना आ रहा है आप बताइए? 22,000। 22,000 का एवरेज है। हार जीत का फैसला 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000। हार जीत का फासला जो है ना बहुत थोड़ा होता है। और अगर 22,000 वोट कट गया तो आप क्या कर लेंगे आप बताइए? हार जीत का अंतर ये SIR तय करेगा, ना कि वोटर तय करेगा, क्योंकि ये 22,000 है। अब देखिए, ये सिर्फ अब मैं अमृतसर की बात बता रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। अब बात कर लें नॉर्थ हल्का, जो कि मेरा अपना हल्का है। यहां 37,496 वोट कट गए हैं जी। 37,496 वोट कट गए हैं। अगर मान लीजिए कि जो डेथ केस है वो भी हटा दीजिए, जो शिफ्टेड है वो भी हम मान लेते हैं कि उसको हटा देते हैं, लेकिन जो एब्सेंट हैं 10,244 लोगों को कहा जा रहा है कि एब्सेंट है। 17,043 लोगों को कहा जा रहा है कि ये शिफ्ट हो गए जी, यहां से चले गए। ठीक है, तो क्या 27,287 लोग नॉर्थ हल्के से गायब है। हार जीत का फैसला आप देखेंगे इस बार तो और कम होगा, क्योंकि वोटों की संख्या काफी कम हो रही है। नंबर ऑफ वोटर्स रिड्यूस हो रहे हैं काफी ज्यादा। अब आप देखिए क्या बात है इसमें, 27,287। अब मान लीजिए मेरी जीत 28,000 कुछ वोटों से हुई थी, लेकिन ये 27,000 बहुत मायने रखता है जी। अच्छा, इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें कई तरह के लोग हैं, लेकिन ज्यादा तरह के लोग जब मैंने एनालिसिस किया वो यहाँ के लोकल लोग ही हैं जिनका वोट कट गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। तो नॉर्थ हल्के में 37,496 वोट कट गया। 10,244 कहा गया कि एब्सेंट हैं जी, गैर हाजिर हैं। गैर हाजिर का मतलब क्या होता है मेरे को बता दो। 17,043, तो मिला करके 27,287 लोग वोटर लिस्ट में फिगर नहीं कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी बात आ रही है, देखिए ऑब्जेक्शन नोटिस लिस्ट। जो भाई एवं बहनों आपके पास जो वोटर लिस्ट आई है 13 अगस्त को, उस वोटर लिस्ट में से भी एक नोटिस लिस्ट है, ऑब्जेक्शन लिस्ट है, जो कि ऑनलाइन नहीं किया गया है। मैं मैडम CEO मिसेज अनिंदिता मित्रा जी से आग्रह करूंगा कि मैडम जल्द से जल्द आप ये ऑब्जेक्शन और नोटिस लिस्ट है ना, इसको तुरंत ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि वोट चोरी यहां से हो रही है। और ये साम दाम दंड भेद, ये सब चीज जो एक लीडर ने कुछ समय पहले बोला था, पंजाब में उसी के कमांड में ये सारा कुछ हुआ है। हुआ कैसे है मैं आपको बताऊं। पंजाब में एक ड्रग्स BLO भी बनाए गए थे। जब ये आपका प्रोसेस चला, मैं मैडम की जानकारी के लिए बोल रहा हूं, अनिंदिता मित्रा मैडम जो कि सीनियर IAS अफसर हैं, बहुत तजर्बेकार हैं। जब आपने ECI BLO को अपना काम दे दिया 25 जून को, साथ के साथ एक ड्रग्स BLO लगा दिए गए, सेम वोटर लिस्ट उनको पकड़ा दी गई और इनको कहा गया, ECI BLO जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के BLO हैं, इनको कहा गया कि आप इनके साथ काम करोगे। और ये पंजाब सरकार ने लगाए थे ड्रग्स BLO, और इनको प्री एक्टिवेटेड ऐप के साथ एक मोबाइल फोन दिया गया। और उनसे पहला सवाल तो ये किया जाता था कि आपके घर में कोई ड्रग्स लेता है कि नहीं, लेकिन तुरंत उसके बाद सवाल क्या आते थे कि भगवंत मान के काम से आप कितना खुश हैं। तो सरकार के परफॉर्मेंस का वो BLO सेम वोटर लिस्ट से ये करता था। जो लोग कहते थे
कि हम बहुत खुश हैं जी भगवंत मान या पंजाब सरकार के कामकाज से, ये बीएलओ उनका एसआईआर मैपिंग कर देते थे। और ये जो एब्सेंट और शिफ्टेड, ये जो सारा चीज वो लोग हैं जो कह देते थे कि नहीं जी हम काम से खुश नहीं हैं। इट मीन्स कि जो लोग आपके काम से खुश नहीं है उनका एसआईआर मैपिंग नहीं कराया गया है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से हमारे यहां वोट चोरी की गई है, और वो साम दाम दंड भेद का हिस्सा है जो दिल्ली के एक लीडर ने बोला था, और उनके निर्देशन में ये ड्रग्स बीएलओ बनाए गए थे। वो सारा ऐप वगैरह उनका अपना था। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि क्या आपको पता नहीं चला कि ड्रग्स बीएलओ बनाए गए हैं? आप ही की वोटर लिस्ट इनको दी गई है और इनको दे करके इनको अंडर, आपके बीएलओ को उनके अंडर कर दिया गया है। क्या अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता नहीं चला? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस। तो जब तक एक जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा तब तक आप फ्री एंड फेयर कैसे करेंगे? आपका काम वोटर का नाम काटना नहीं है, आपका नाम जेन्युइन वोटर का नाम उस वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ये इंश्योर करना है। आपका मेन काम क्या है कि जेन्युइन वोटर अपना वोट कर सके, मताधिकार का प्रयोग कर सके। इलेक्शन ऑफ इंडिया का ये काम है, पहला काम ये है। तो आपकी जो वोटर लिस्ट जा रही है वो दिल्ली के एक लीडर के साम दाम दंड भेद के तहत वोट चोरी करके ड्रग्स बीएलओ के थ्रू बनाई गई है। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ना, 20,66,000 पंजाबियों का जो वोट कटा है वो साम दाम दंड भेद का हिस्सा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां फेल हो गया है। या तो आपकी रजामंदी है या आपको पता नहीं चला है। आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया कि ये ड्रग्स बीएलओ सेम टाइम पर सेम वोटर लिस्ट के साथ क्यों लगाए गए? ये आपको बताना पड़ेगा कि सेम वोटर लिस्ट और हर जो वोटर लिस्ट के साथ जो बूथ है बूथ के हिसाब से हुआ है। अगर आपको सेंसस करना है, ड्रग सेंसस करना है, तो आप हाउस होल्ड सर्वे कर सकते थे। आपके हाथ में वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। दो भाई हैं, जतिंदर सिंह, रंजीत सिंह, अमृतसर वेस्ट हल्का जी। इनका नाम काट दिया गया, कहा गया कि ये लोग एब्सेंट हैं जब ये एसआईआर मैपिंग का प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, उन्होंने मुझे फोन किया क्योंकि हमने एक अपने ऑफिस में एक डेस्क बनाया हुआ था। तो जतिंदर सिंह, रंजीत सिंह वेस्ट हल्के में रहते हैं, काले घनुपुर का एरिया है, शरीफ लोग हैं। ठीक है, इन्होंने बोल दिया था कि हम सरकार के काम से खुश नहीं हैं, इनका नाम काट दिया गया। मैंने 16 नंबर बूथ के बीएलओ मैडम से बात की। जब वो मेरे पास, मैंने खुद बात की कि मैडम ये फलाने लोग वहां रहते हैं ना जी, ये तो चले गए ना जी, ये लोग चले गए हैं, यहां से नहीं रहते हैं। मैं कहा कि देखिए मेरे सामने मौजूद हैं और ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा नाम काटा जा रहा है, ठीक है, या काट दिया गया है। जब मैंने उनको कहा कि मैडम देखिए, किसी के दबाव में आकर के किसी का नाम काटना और नाम जोड़ना ये गलत है। ये लोग आएंगे और जाएंगे, जो लोग आपको हिदायतें कर रहे हैं दिल्ली वाले। लेकिन क्या है कि आप परमानेंट सर्विस में हो, आप टीचर हो, कल होकर के गलती पकड़ी जाएगी तो फिर नौकरी आपकी जाएगी। मैंने साफ साफ बोला है ऐसे। मैं आपको बताऊं, अगले दिन वो मैडम पहुंच गए उनके घर और जाकर के इन्यूमरेशन फॉर्म दे करके आए हैं, और 3 दिन बाद फिर वापस लेकर के गए हैं। आप बताइए, पहले उसी मैडम ने बोल दिया था कि ये काट दिया गया क्योंकि ये लोग यहाँ नहीं है, शिफ्ट हो चुके हैं जी। और अब देखिए, जब मैंने बात की तो तुरंत उनको इन्यूमरेशन फॉर्म भी दे दिया गया, और उनका फिर फॉर्म लेकर के उनका हमने अभी भी चेक किया, उनका बिल्कुल सही पाया गया। अब ये देखिए, एब्सेंट और शिफ्टेड का जो चक्कर है मैं आपको बता रहा हूं। पूरे पंजाब में 5,74,000 डेथ दिखाया जा रहा है। हम कोई किंतु परंतु नहीं कर रहे हैं। 1,19,000 दिखाया जा रहा है कि ये लोग डुप्लीकेट वोट है। लेकिन एब्सेंट और शिफ्टेड 4,12,000, 9,44,000, ठीक है, 9,4,13,56,000 ये हुआ। और हम अमृतसर नॉर्थ की बात कर रहे हैं, 10,244, 17,043, 27,287 ये वोटर कैसे एब्सेंट हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे जतिंदर सिंह और रंजीत सिंह
एब्सेंट थे बीएलओ की लिस्ट में, वैसे ही ये सारे लोग एब्सेंट हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां देखिए, नवनीत सिंह ग्रोवर मेरे ग्वांडी हैं जी, जहां मैं रहता हूं, और इनकी उम्र तकरीबन 75 साल होगी। ये 2003 में भी वहीं थे, लेकिन इनको क्या दिखाया जा रहा है जी? तो ये एब्सेंट हैं जी। कहां से एब्सेंट हैं? ये लोग वहीं रहते हैं, अमृतसर में इनका कारोबार है, और आप मुझे बता सकते थे कि हाँ ये फलाने आदमी एब्सेंट हैं। कैसे एब्सेंट हैं? वो हर मीटिंग में आते हैं, मोहल्ले में सरगर्म रहते हैं। तो नवनीत सिंह ग्रोवर का नाम काट दिया गया है, देखिए इनको एब्सेंट दिखा करके। मेरे तो ग्वांडी हैं। एक और ग्वांडी देखिए, राघव अनेजा, इनके पिताजी तो एक बड़े लीडर हैं, एक बड़े लीडर हैं अमृतसर में, और राघव अनेजा को कहा जा रहा है कि परमानेंटली शिफ्टेड। अब बताइए, राघव अनेजा मेरे बगल में रहते हैं, इनका घर 44 नंबर हाउस नंबर है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि ये शिफ्टेड हैं। ये तो सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मेरे पास हजारों लोगों की लिस्ट पड़ी है, तब मैं इस प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास आया हूं। उर्वशी संधू, ई ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू, पंजाब में रही हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए पास किया है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, कभी ये बाहर चली जाती हैं क्योंकि इनका परिवार बाहर भी रहता है। तो इन्होंने सही तरीके से अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया, लेकिन परिवार के दो लोगों का नाम आ गया और उर्वशी संधू का नाम कट गया। मान लीजिए यहां ये शादी करा करके आई हैं, लेकिन ये कोई पाकिस्तान से और बांग्लादेश से नहीं आई हैं, पटियाला से आई हैं, तो इनके पिताजी का वोट पंजाब में ही है। तो मेरा ये कहना है कि आप नाम काट दे रहे हैं। अगला नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक मैडम प्रमा है, 80 साल की उम्र होगी, 80 साल से भी ज्यादा। 2003 में भी वो वहीं रहती थी, उनका नाम काट दिया आपने जी। बताइए, उनका नाम आपने काट दिया। आप कैसे काट सकते हैं? आपका काम, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि आप सही वोटर है, जेन्युइन वोटर है, उसका वोट देने का राइट होना चाहिए। आप अगर नाम काटेंगे, वो भी साम दाम दंड भेद के उस सिस्टम से, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए आपको हम आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये सारा प्रोसेस दोबारा कराइए, खास करके जो एब्सेंट और शिफ्टेड की जो लिस्ट है। और सबसे बड़ा जो वोट चोरी यहां हो रहा है, इस साम दाम दंड भेद से जो वोट चोरी हो रहा है, वो ऑब्जेक्शन और नोटिस लिस्ट, ये ऑनलाइन नहीं किया गया है जी। ये बीएलओ के पास खुद है, जिसका नाम काट दे, जो वोटर लिस्ट में नाम आ गया है उनको भी खुश होने की जरूरत नहीं है। जिसका मर्जी वो नाम काट दे कि मैपिंग नहीं हुई जी, जिसका मर्जी वो नाम उसमें जोड़ दें जी। तो ये जो वोट चोरी पंजाब में हो रही है, ये भाइयों और बहनों, ये 20 लाख में थोड़ा दिखा रहा हूं। ये जो ऑब्जेक्शन और नोटिस लिस्ट है, इसमें तकरीबन एवरेज 150 से 200 वोटर हर बूथ पर हैं, मैं आपको बता दूं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना नाम काटा जाएगा। ये 20 से 40 हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, 40 लाख। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस जो हुआ है, और मैडम अनिंदिता मित्रा जी को भी मैं कहूंगा कि देखिए, आपने ठीक है 4 अगस्त को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने बहुत ध्यान से आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, लेकिन जो आपने हिदायतें दी थी, आपने ये नहीं पता किया कि उन हिदायतों को किसने फॉलो किया और किसने नहीं किया। मैडम देखिए, मैं आपके लिए भी बता रहा हूं, आपने ये कहा है कि 25 जून से 24 जुलाई के बाद आपने 3 अगस्त तक डेट बढ़ाया। 25-26 जुलाई को जो लोग इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के जाते थे, आपके बीएलओ कहते थे कि चाहे किसी से भी फोन करवा लो, कुछ भी करवा लो, हमें इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं लेना है। तो जो 25 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक इन्होंने कोई इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं लिया है, तो आप ही के बीएलओ ने आपके ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया है। और ये जो ईआरओ और सुपरवाइजर हैं, ये टोटली अनट्रेसेबल लोग हैं। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे शहर में, मेरे हल्के में कौन सुपरवाइजर है और कौन ईआरओ है। और आपको अभी भी बता रहा हूं कि 4, 5, 6 बार फोन करके मैं हटा हूं, लेकिन कानूनगो साहब ने फोन नहीं उठाया। इन सबको पता है कि इन लोगों ने जानबूझ करके ये वोट चोरी की है और करवाई हुई है। ठीक है कि नहीं? एक छोटा एग्जांपल, आप कह रहे हैं ना कि सुपरवाइजर लगाए हुए हैं, 7 नंबर पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन 7 नंबर अमृतसर नॉर्थ में, 7 नंबर है रंजीत एवेन्यू का। उसका 2 पार्ट हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में सी ब्लॉक है, सेक्शन 2 में सेक्टर 4 है। सेक्टर 4 एक अलग मोहल्ला है रंजीत एवेन्यू में, सी ब्लॉक एक अलग। अब यहां भी आप देखिए, सेक्टर 4 वालों का भी सी ब्लॉक लिखा हुआ है। मैंने बीएलए को
लिख करके भेजा है मोबाइल पर, मेरे पास यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, और मैं आपको डेट के साथ बता सकता हूँ, डेट के साथ बता सकता हूँ कि इलेक्शन कानूनगो को हमने ये कब भेजा था, और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी मैंने भेजा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कोई नहीं होता है, डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं उनको भी, कि आप लोग इतना, अगर आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हो तो ये क्यों ये परेशानी आ रही है। और जो इन्होंने अभी किया है ये भी ये गलत किया हुआ है। और आप देखें कि मैंने तो इन लोगों को भेज दिया था 25 जून को ही, 25 जून को, और वो भी देखिए जो मोहल्ले का वेलफेयर एसोसिएशन है ना, वो भी इनको लिख करके दिया हुआ है, इन राइटिंग दिया हुआ है, लेकिन आपके वोटर लिस्ट में ये क्यों नहीं आया। यहाँ भी सी ब्लॉक लिखा है, यहाँ भी सी ब्लॉक लिखा है। आप 7 नंबर पोलिंग स्टेशन का आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब, जो एग्जाम्पल मैंने नवनीत सिंह ग्रोवर का दिया, राघव अनेजा का दिया, उर्वशी संधू का दिया, प्रमा मैडम का दिया, और जतिंदर सिंह, रंजीत सिंह का दिया, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं। मेरे पास हजारों की लिस्ट पड़ी हुई है। अब आइए, लेकिन आप सबसे पहले ऑब्जेक्शन लिस्ट ऑनलाइन कीजिए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि नया वोट बनने का काम शुरू हो गया जी 14 तारीख से, 14 अगस्त से, आज भी नया वोट अप्लाई नहीं हो पा रहा है। हमने आज भी कोशिश की, हमारे पास आज भी कई लोग आए, लेकिन उनका वोटर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। और आप कह रहे हैं कि नोटिस दे रहे हैं, किसी ने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है। आपने ये भी कहा कि एटलीस्ट 3 टाइम्स BLOs विजिटेड हाउस होल्ड्स, ना जी किसी के घर नहीं गए हैं ये लोग। जो सामने मिल गया दे दिया, जो नहीं मिला जी नहीं गया, अपनी मर्जी से। ठीक है, कुछ BLO ने बहुत सिंसियरली काम किया है, 10% 15% BLOs ने बहुत सिंसियरली काम किया है, लेकिन मेजोरिटी जो आपके BLOs हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन लोगों ने बस इसको खाना पूर्ति की हुई है, इसलिए ये वोट सारे डिलीट हो रहे हैं और कट रहे हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये जो 20 लाख है ना, 20 लाख के अलावा जब आप ऑब्जेक्शन लिस्ट, नोटिस लिस्ट को आप सामने रखेंगे तो ये 40 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक बूथ पर ये 22,000 नहीं 44,000 वोट कटेगा, 44,000 वोट करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे कह सकता है कि हमने वी इंश्योर्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमेशा ये आप लोग बोलते हैं, लेकिन ये सारा सिस्टम गलत है। और आप दिखाइए, मैं फिगर के साथ बोल रहा हूं, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं। और मैं इस बारे में चिट्ठी जरूर लिखूंगा, आज लिख दूं, कल लिख दूं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है। आपकी वेबसाइट पर आज भी अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर हम ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए कोई चीज अप्लाई करते हैं, नहीं हो रहा है। BLO के थ्रू भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। और आप कह दें कि देखिए जी हमने 14 तारीख से पोर्टल को ओपन किया था, तो आज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो सिस्टम है ना, ASDD, ए का मतलब क्या है, एब्सेंट, एस का मतलब क्या है, शिफ्टेड, डी का मतलब है डेड, फिर डी का मतलब डुप्लीकेट। तो ये जो आप लोगों ने सिस्टम बनाया है टोटली फॉल्टी है। और जेन्युइन वोटर जो पंजाब का है वो डिलीट हो गया है, वोटर लिस्ट में नहीं है। और एक ही परिवार के 3 लोग हैं, 2 लोग नहीं हैं। तो आपका ये सारा प्रोसेस या एक्सरसाइज आपने किया है, जो आपने सिस्टम बनाया था, जो प्रोसेस आपने बनाया था, उस प्रोसेस के हिसाब से ये काम नहीं किया गया है। कंप्लायंस नहीं हुआ आपके ऑर्डर का, और उसका कारण था वोट चोरी हुई है साम दाम दंड भेद के जरिए, ड्रग्स BLO लगा करके, सेम वोटर लिस्ट दे करके आम लोगों का वोट काटा गया है, जेन्युइन पंजाबियों का वोट काटा गया है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, जो कि पंजाब में ही जमे हैं, पंजाब में ही पले हैं, पंजाब में ही पढ़ाई की, पंजाब में ही रह रहे हैं, उनका वोट काटा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं कहूंगा कि आप संज्ञान लीजिए, इसका कॉग्निजेंस लीजिए। और CEO मैडम को भी बोलूंगा कि आप बाहर निकलिए, आप फील्ड में जाकर के देखिए कि कितना कंप्लायंस हुआ है। मैं समझता हूं कि 15-20% से ज्यादा कंप्लायंस नहीं हुआ है आपके ऑर्डर्स का। तो ये सारा देखिए, मैंने पूरे पंजाब का फिगर आपके पास दिया, अमृतसर जिले का फिगर दिया, अमृतसर नॉर्थ का फिगर दिया, ये ड्रग्स BLO का हिसाब किताब दिया कि इनकी क्या जरूरत थी। और जैसे देखिए ये मैपिंग का प्रोसेस खत्म हुआ, ड्रग्स BLO गायब हो गए, एकाएक गायब हो गए। और ये किसी और डिपार्टमेंट से, शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और गांव में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से थे। तो ये किस लिए थे? क्या इलेक्शन कमीशन इसकी इंक्वायरी करवाएगा कि इसी टाइम में ये BLO बनाने की क्या जरूरत थी? और ये BLO
ज्यादा प्रभावी थे, ज्यादा इफेक्टिव होते थे। तो ये सारा जो सिस्टम है आपका फॉल्टी है। तो जो आप इलेक्शन कराएंगे, आप कह रहे हैं ना कि फाइनल वोटर लिस्ट आप 12 अक्टूबर को पब्लिश करेंगे, ये सारा सिस्टम आपका फॉल्टी है। और आप चाहे जितना मर्जी कहें कि इतने लोगों ने काम किया, ऐसे किया, हमने इसमें सिंसियरिटी और सीरियसली हमने काम किया, ये कोई सीरियसनेस इसमें नहीं है, कोई सिंसियरिटी नहीं है। और इसमें पंजाब के जेन्युइन वोटर को मूर्ख बनाया गया है। और पंजाबियों को जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन नहीं है, वो इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इलेक्शन हम तब कहेंगे कि आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हो, और वोटर लिस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस को आप दोबारा वो कीजिए और सबको मौका दिया जाए कि अगर आप ये लिस्ट ओपन नहीं करेंगे, मैं कहता हूं कि कहां मेरे साथ में मेरे गुआंढी हैं, कोई नोटिस आज तक नहीं दिया गया है। नोटिस आप देंगे तभी तो जाकर के उसका कोई जवाब देगा। तो ना नोटिस आप दे रहे हैं, ना नया वोट अप्लाई हो रहा है। एक और आपको बताऊं, हमारे ही हल्के में माल रोड पर अरुण कपूर जी, उनके परिवार में 15 से 20 आदमी, वो होली सिटी चले गए, ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट में चले गए। इनका वोट क्या होना चाहिए? वोट शिफ्ट होना चाहिए। अरुण कपूर जी का वोट पूरे परिवार का नॉर्थ से वेस्ट हल्के में शिफ्ट होना चाहिए, जहां वो चले गए हैं। आप पहले नॉर्थ में काट रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जा करके 13 अगस्त के बाद से आप नया वोट अप्लाई कीजिए। यह इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा कह रहा है तो मैं कहूंगा कि ये भारत के संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार काम नहीं हो रहा है। वोट शिफ्ट कर देना होता है। एक ही अगर एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ले में सेम पोलिंग स्टेशन पर भी अगर कोई आदमी शिफ्ट हो गया है तो पहले आप नाम काट रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आप वो बनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन में, या एक ही शहर में एक हल्के से दूसरे हल्के में अगर कोई शिफ्ट हो रहा है तो वोट शिफ्ट होना चाहिए, ना कि आप इधर नाम काटेंगे और फिर कहेंगे कि इधर आप नाम वहां पर जुड़वाइए। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम है, ये फॉल्टी है। और ये जानबूझ करके ये वोट चोरी हो रही है और पंजाब के लोगों की वोट चोरी हो रही है। आप कहें कि मैं ही क्यों बोलता हूं, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार हूं, LLB की हुई है, पढ़ाई लिखाई की हुई है, ऐसे हम MLA नहीं बने हैं। तो जिसको जानकारी होगी वही बोलेगा। और ये सारा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ मैं बोल रहा हूँ, A to Z फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोल रहा हूँ। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं कहूंगा कि इस सारे मामले का संज्ञान लीजिए और वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के बाद ही वोटिंग प्रोसेस आगे शुरू कीजिए। ये केवल मेरा मसला नहीं है, ये सारे पंजाब के लोगों का मसला है। लोग तो ऐसे आपस में लड़ रहे हैं। हर पार्टी को लगता है ना कि उनके हाथ में सत्ता आ रही है, तो कोई पार्टी आपस में लड़ रही है कि मैं सीएम बनूं, मैं सीएम बनूं। इधर तो किसी का ध्यान नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं है। लेकिन क्या है कि जो अंदर खाते ये सारा चीज हुआ है, ये आप इंक्वायरी कराइए कि ड्रग्स BLO उसी समय बनाने की क्या जरूरत थी, इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट उनको देने की क्या जरूरत थी, ये कैसे दिया गया। ये तो प्रमाण है ना जी, प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आग्रह है कि आप ये सारा प्रोसेस दोबारा कराइए और इसके बाद हम फिर से आएंगे